بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 to 19 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. تو آپ پوچھئے پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو زمین پر ہیں سب کو، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس پر بھی اللہ کی ہی بادشاہت ہے. وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. بے شک. آیت نمبر 18. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور دعویٰ کرتے ہیں یہودی اور نصارہ یعنی کہ عیسائی بھی کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے بہت محبوب ہیں، چہیتے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے پھر کیوں وہ سزا دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ بے شک تم بھی بشر ہو، انسان ہو ویسے ہی جیسے دوسرے اس نے پیدا کیے ہیں. وہ معاف کر دیتا ہے، وہ مغفرت کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے. اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 19. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير
واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، بے شک آئے تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک وقفے کے بعد رسولوں کے آمد کی باتیں، کہ تم کہیں یہ نہ کہنے لوگو کہ نہیں آئے ہمارے پاس کوئی رسول خوشخبری سنانے والے اور نہ ڈرانے والے۔ پھر در حقیقت آ گئے تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا یہ ہمارا رسول اور خبردار کرنے والا بھی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے بے شک۔ سورہ مائدہ انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ در حقیقت یہاں پر دیکھیں کہ 3 گروہ کا جو 2 تو پاسٹ کے مسلمان تھے اور ایک جو ہے وہ پریزنٹ کے مسلمان، ان سب کا تذکرہ کر کے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ نصارہ کے بارے میں۔ یہ کرسچینٹی جو ہے، یہ کرسچن لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس میں بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں دین کب بگڑتا ہے؟ جب عقیدہ بگڑتا ہے۔ تو دعا کریے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام امت مسلمہ کی جو ہے وہ عقیدے کو درست کر دے، کیونکہ ایمان کا بھی ڈیپینڈنسی اسی پر ہے اور آخرت کی بھی ڈیپینڈنسی اسی پر ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا کرنے دیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں واٹس اے ریزن کہ یہ نصرانی جو تھے ان کے عقیدے کہاں سے بگڑنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت کفر کیا، انکار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ ان اللہ یعنی بے شک اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات! ہمیں تو پڑھتے ہوئے اندر سے خوف محسوس ہوتا ہے، جب یہ لوگ کہتے تھے تو انہیں خوف محسوس نہیں ہوتا تھا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ اللہ کہتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم ذرا غور نہیں کرتے، اور دیکھیے کہ یہ آیتیں آپ کے اگر فرینڈ سرکل میں آس پڑوس میں کوئی اگر کرسچن ہو تو ان کے سامنے ایسی آیتیں پڑھا کرو، ان سے کہا کرو کہ دیکھو ہماری کتاب میں بھی جو ہے وہ جیزس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو آپ انہیں اس بات کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا پوچھئے ان سے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ اگر پھر کون وہ اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے یا اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا، کس صورت میں؟ ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اگر ارادہ کرے، ٹھیک ہے، اگر ارادہ کرے کہ ہلاک کر دیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، پھر کون جو چیزیں زمین میں ہیں سب کے سب کو اگر ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون؟ یعنی کہ یہ دیکھیے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو پاور رکھتا ہے یا اختیار رکھتا ہے ان کو بچانے کی اللہ کی پکڑ سے؟ کون ہے کیا کوئی؟ بتائیے۔ تم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ حضرت مریم کے بیٹے اور خود حضرت مریم کو اگر ہلاک کرنا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے جو وہ بچا سکتا ہے؟ آج بات سمجھ میں کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، تو بتاؤ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچائے؟ جب ان کے ساتھ قتل کا ارادہ ہو رہا تھا، یا تمہارا ایسا سوچنا ہے، تمہارا ایسا ماننا ہے کہ انہیں سولی چڑھا دی گئی، تو بتاؤ پھر انہوں نے کیوں نہیں بچا لیا اپنے آپ کو؟ نہیں، اصل بات کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے بندوں کا
इंसानियत को ये अकीदा होना चाहिए, तमाम इंसानों के अल्लाह ही का है, अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों और जमीन में, और जो कुछ भी उन दोनों के दरमियान है। ये है असल अकीदा कि आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है वो सब का सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। यस, और आप जवाब देते कि अल्लाह तेरी पकड़ से कोई हमें बचा नहीं सकता, तू ही हमारा वली है, तू ही हमारा मददगार है, तमाम बादशाहत तेरी है। देखिए दुआ मांगने के जो आदाब है उनमें ये चीजें भी शामिल है कि हम पहले खूब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ करें। जिस तरीके से मैं आपको पहले भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दी ना कि देखिए जब बच्चे को कोई चीज अपनी माँ से या पेरेंट्स से लेनी होती है तो कैसे कैसे वो किस अंदाज से जो चीजें मांगता है, वो तारीफ करता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई चीज मांगे तो खूब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान करें, उसकी तस्बीहात को बयान करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश हो जाए और हमारी दुआओं पे कुन कह दे। और क्या है, और क्या अकीदा हमारा होना चाहिए, यखलुकु मा यशाउ, यस, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, वज़हु अला कुल्ली शैइन कदीर, और उसी का है जो, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। असल बात ये है, देखिए ये हमारा अकीदा होना चाहिए। अच्छा, किस बेस पे ये ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते थे? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ के कि ये जो है वो बगैर बाप के पैदा किए गए हैं, तो गोया कि ये खुद खुदा है, नाउज़ बिल्लाह, ये इस तरीके का अकीदा था उनका। तो ये बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत है, हर चीज पर उसका पावर चलता है, वो जो चाहे पैदा करे। तुम कैसे नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो खुदा कह सकते हो? चलिए, ये बात थी किसकी? नसरानियों की। उनके अकीदे में इस तरीके से बिगाड़ पैदा हुआ शिर्क के जरिए। यस, देखिए अकीदा दुरुस्त नहीं होता है जब शिर्क का उसके अंदर मिलावट हो जाए, जब उसके अंदर जो है वो शिर्क की मिलावट हो जाती है ईमान के अंदर, तो अकीदा बिगड़ जाता है इंसान का। ठीक है, पास के एक और मुसलमान यहूदी जो थे, उनकी कुछ खुशफहमियां थी, मिसकॉन्सेप्ट उनका जो कुछ था, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। पिछली कौम जो थी वो क़ालतिल यहूद व नफ़ारा, अब यहूदी क्या कहते थे और नसारा, नहनु अबनाउल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, कि हम अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाउहु, और हम उसके बहुत चहीते हैं। ठीक है, ये उनका दावा था, ये खुशफहमी थी। जैसे आज के मुसलमान मिसकॉन्सेप्ट में हैं और इतने खुशफहमी में हैं कि चूंकि हम उम्मत मुहम्मदिया हैं तो हम अल्लाह के चहीते हैं, हमने तो जहन्नम की आग छू नहीं सकती है, हमारा तो कोई बाल का भी नहीं कर सकता है, कौन है जो हमारे मुकाबले में आ जाए। देखो इस तरीके की बातें आज का मुसलमान करता है, जैसे कि पास के मुसलमान किया करते थे। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अच्छा तुम अल्लाह के बड़े लाडले हो, तो एक बात बताओ, पूछो जरा इनसे, फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, बताओ जरा फिर क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अज़ाब देते हैं तुम्हारे गुनाहों पर। यस, देखिए कोई भी पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चे को जो मोहब्बत करते हैं, वो उनके चहीते लाडले होते हैं, तो माँ बाप तो कोई भी जो है अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकते हैं या बच्चे को ऐसी सजा नहीं देते हैं कि जो वो बर्दाश्त ना कर सके। क्योंकि कोई भी अपने प्यारों को सजा नहीं देता है, बिल्कुल भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जो इनका दावा है, ये जो इस तरीके से दावा करते हैं, तो इनसे पूछो जरा, पूछो इतने ही लाडले हो तो तुम इतने गुनाह करते हो, तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें पकड़ते हैं? रुको, मैं तुम्हें जो है वो असल बात बताता हूँ। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम भी इंसान हो उसी की तरह जो उसने पैदा किया है। तुम कोई अल्लाह के बेटे नहीं हो, तुम कोई अल्लाह के महबूब नहीं हो, बल्कि तुम भी एक आम इंसान हो जिसे अल्लाह ही ने पैदा किया। और जहां तक बात अल्लाह के मोहब्बत की और अल्लाह के जो है वो चाहत की है, तो ये भी सुन लो, यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, ये पूरा पावर है अल्लाह सुब्हानहू तआला को, वो बख्श देता है जिसके लिए वो चाहता है और वो अजाब देता है जिसको वो चाहता है। क्यों? क्योंकि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द व बैनहुमा। फिर बात आ गई,
उसी की बादशाहत है आसमान और जमीन में और जो कुछ उसके दरमियान है, उन दोनों के दरमियान है। और एक पावर अल्लाह का व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे अजाब दे। दुआ करिए अल्लाह बख्शिश करने वाले लिस्ट में हमें शामिल कर दे, जिसकी तुम मगफिरत कर दे, जिसे तुम मगफिरत के लिए पसंद करे, ऐसे लोगों में हमें शामिल कर दे। जो अजाब के मुस्तहिक हो गए हैं तेरे, ऐसे लोगों में हमें शामिल नहीं करना। इंशाल्लाह आयत नंबर 18 तक रखते हैं इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह सूरतुल माइदा आयत नंबर 19 में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या मैसेज दे रहे हैं देखते हैं। और जैसे कि 18 में भी यहाँ पे ये फरमाया गया है व इलैहिल मसीर, तो इस चीज को महसूस करिए कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम्हें जो है, तुम सबको मेरी ही तरफ जो है वो लौट कर आना है। कभी देखिए इस जुमले को अगर हम समझ जाएं या इसको एहसास हो इस चीज का या महसूस करें, तो एक चीज जो समझ में आती है कि जब कभी आपको कोई काम मुश्किल लगे, आपको ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ और बिल्कुल भी आपके अंदर हिम्मत ना आए उस चीज को करने की, तो बिल्कुल अकेले में बैठकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करिए, अल्लाह तेरी तरफ मुझे पलट कर आना है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरे इस काम को जो है वो आसान कर दे। क्योंकि पीछे 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 हम जो आयतें देखते चले आ रहे हैं कुरान के ताल्लुक से कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ इस कुरान के जरिए जो है वो हमें लेकर आते हैं, हिदायत की तरफ लेकर आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब को हमें जो है वो समझने की तौफीक दी। और बिल्कुल भी अगर समझिए कि क्लास के दौरान या अल्लाह के कलाम के को सुनने या पढ़ने या पढ़ाने के दौरान आपके दिल में कभी भी कोई ऐसा ख्याल आ जाए, एट प्रेजेंट इस वक्त जिस आयत पर हम हैं उसके अलावा कोई दुनिया का ख्याल आपके दिल में आ जाए, तो समझिए शैतान वसवसा डाल रहा है और आपकी तवज्जो वो हटाना चाहता है। आप किसी और काम में लगी हैं तो फौरन जो है वो अल्लाह की पनाह में आप आ जाइए, ताकि बात हमें जो है वो समझ में आए। अल्लाह के कलाम का हक अदा करेंगे तो ही जो है वो, जैसे कि पिछले रुकू में बात चली आई थी कि तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अंधेरे से नूर की तरफ ले जाएंगे, फिर जिंदगी भी हमारी नूर के ऊपर नूर यानी नूर ही नूर हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे कि बार बार जो है वो मैसेज दिया जा रहा है, और यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है अहले किताब को कि आयत नंबर 19 में, या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना, ऐ अहले किताब दर हकीकत आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे रसूल। अच्छा, हमारे रसूल आ गए हैं। अब ये बात किसकी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, क्यों आए हैं? युबय्यिनु लकुम, वो बयान करते हैं तुम्हारे लिए। क्या बयान करते हैं? अला फतरतिन मिन रसूल, यानी कि जो एक गैप हो चुका है दूसरे रसूलों के दरमियान, एक वक्फे के बाद, जो बयान करता है तुम्हारे लिए एक वक्फे के बाद रसूल के आने की खबर देने के लिए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो भी एक बीच में गैप हो गया था, जो एक गैप हुआ था अंबियाओं का, रसूलों का, तो अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल बनाकर अल्लाह ने इनको भेजा, तो वो जो है तुम्हें पिछले रसूलों की बात बताने के लिए आए हैं। ठीक है, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? और इस रसूल को भेजने का मकसद क्या है? अन तक़ूलू, ताकि तुम ऐसा ना कहो कि नहीं आए हमारे पास कोई भी खुशखबरी देने वाला और नहीं कोई खबरदार करने वाला। फिर दर हकीकत आ गए तुम्हारे पास बशीर यानी खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने वाले भी आ गए हैं। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है रसूलों को भेजना, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। देखिए इस आयत के बाद तो क्या कई ऐसी आयतें हैं जिसके बाद आप ये सोचिए कि क्यों ना अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अपनी हुज्जत तमाम करी है रसूलों को भेजकर, किताब भेजकर, तालीमात भेजकर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पूरा हक है कि रोज क़यामत हश्र के मैदान में वो इंसानों से सवाल जवाब करे। दलील है इस चीज की, चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हुज्जत पूरी करी तो इंसानों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अंतकुलू, तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि हमारे पास तो कोई रसूल ही नहीं आए।
देखिए जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा उनका अल्लाह सुब्हान ताला के साथ अलग मामला है, कि जिनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जो अल्लाह सुब्हान ताला ने किताब देकर भेजी वो नहीं पहुंची, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपने आप को खुशनसीब समझे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया बनाया है। और यहाँ पर ये देखिए कि अहली किताब यानी कि अहली किताब तो उम्मत मोहम्मदिया भी है, क्योंकि उसको भी किताब दी गई है। अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे तुम्हारे पास अब ये रसूल जो है खुशखबरी देने वाले और जो है वो खबरदार करने वाले बनाकर भेजे गए। अब देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह के कलाम का मैसेज मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास आ गया है। तो हमारे पास अल्लाह सुब्हान ताला के सामने जो है कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं होगा कि हमने अल्लाह की किताब को क्यों नहीं माना। हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।